and welcome back to my channel. My name is Khushbu Jain and Vedic Maths Mastery it's my channel name. So in the today's video we'll do a really lot of fun. See how. As I told you with the competitive exams along with the competitive exams videos I'll teach you each and every concept of Vedic Maths. Basically, Vedic Maths plays a very vital role in your competitive exams. That's why I started Vedic Maths videos first, and then I started competitive exam. And then in the last to last video, as I told you that there is some competitive exams during solving the competitive exams questions, we already learned the some Vedic Maths rules as well, how the Vedic maths tricks also, help in your competitive exams during the solving questions. So basically, but in today's, as I promised in my starting videos, that I will show you some very magic tricks of Vedic maths. See, Vedic maths basically teaches you a very magic things also. There are some magic tricks which I promise that I'll teach you, and you can easily, play with your friends, with your family members, with your relatives, colleagues, and in your, parties. Everywhere you can play these kind of techniques with anyone. So with this technique, you can predict the date of birth of any number of people simultaneously. So you can try this stunt with anybody. Okay, as I told you. So there are some steps you have to follow. You have to just keep it in your mind while playing with others. So it will, give you the answer. These some steps will give you the answer that how can you find the answer basically. How can if you are giving these steps to someone, you do this first step, then do this second step. So after that, you can find the person's date of birth very easily. So already I told this magic in my starting videos, but along with this magic trick, I'll teach you a one more magic trick. A one more magic trick which is really very interesting. I'm 101% sure you will like this video अरे कहना क्या चाहते हो? because this magic will not you never had seen ever. So so in the end of this video, I'll teach you after this second magic, and you can play with anybody. And definitely, I'm 101% guaranteed the person you were playing with these techniques, वो कुर्सी से तो जरूर उछल जाएगा because sometimes I have seen with my students. मेरे स्टूडेंट्स का मेरे पास पिक तो नहीं है, वो एग्जैक्टली वो वाले फेस का पिक नहीं है। जब मेरे सभी स्टूडेंट्स जब मैं बैच ले रही थी तो उन्होंने सभी स्टूडेंट्स ने बोला ये कैसे कर लिया मैम आपने, ये कैसे कर लिया आपने, उन्होंने यही मुझे बोला था। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू, if you think this is really very knowledgeable for you, and if you think that it's really a magic, it's not making you fool, so you can like my video, comment in the section below, and subscribe my channel. And you know what? In the future upcoming videos, I'll teach you how can you sharp your memory, how can you learn the long paragraphs and 20 words at a time. How can you learn? So for upcoming videos, if you want to learn, so you can subscribe my channel. So let's start this video. See, there are some steps and you have to follow these steps. And there are some also two steps are also left. I'll teach you. But just look at this. How to predict a person date of birth. आपको पता है ना कि एक पर्सन का डेट ऑफ बर्थ को कैसे फाइंड मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या होता है बेसिकली। अब उसको फाइंड आउट कैसे करना है, पहले मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता रही हूँ, एंड आफ्टर दैट आई टीच यू according to my date of birth. Okay, how can you basically find out? So the first step is take the month number. As you all know that take the month number means क्या हुआ, जो जिस दिन आप basically
आपका बॉर्न हुआ है, जिस दिन आप बेसिकली आस्क द पीपल टू टेक द नंबर ऑफ मंथ इन विच दे वर बॉर्न। बेसिकली जैसे अगर आप जनवरी में हुए हो तो आप 1 नंबर लोगे क्योंकि जनवरी का 1 नंबर होता है। अगर आप फेब्रुवरी में पैदा हुए हो तो आप यहाँ पर 2 लिखोगे। अगर आप मार्च में हुए हो तो 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से दिसंबर तक हमारे मंथ होते हैं, तो दिसंबर तक के हमारे 12 होते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको वो लिखना है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डबल द आंसर। ओके, तो जो आंसर होगा उसका डबल करना है। फिर उसमें आप करेंगे ऐड 5 एंड देन मल्टीप्लाई 5। आगे क्या स्टेप्स है मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। सी, जैसे मेरा आपको मैं डिस्क्लोज करके चल रही हूँ, आप वो आपको जिससे आप पूछोगे वो आपको डिस्क्लोज नहीं करेगा, वो सीधा अपना पेन पेपर पे लिखेगा। आपको सिर्फ उसको स्टेप्स बताने हैं कि आप ये फॉलो करो। उसके बाद एंड ऑफ दी कंप्लीटिंग दी स्टेप्स आप उसको उसका बर्थ डेट बताओगे। कैसे बताओगे वो सब बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे मेरा जो बर्थ डेट है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, 3 जुलाई। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना है आपको, 3 जुलाई। ठीक है, जुलाई आपको पता है ना 7 मंथ में आता है। ठीक है, तो अब मैं ये लेकर चलती हूँ और कैसे मेरा 3 जुलाई निकलता है वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप दूसरों के साथ उसको प्ले कर सको। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 7 नंबर ले लेती हूँ। टेक द मंथ नंबर, तो मैंने ले लिया 7 नंबर। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप सेज बेसिकली यू हैव टू डबल द आंसर। तो आई विल डबल इट। डबल का मतलब क्या होगा कि मेरे को 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये बेसिकली वो करेगा जिसके साथ आप प्ले कर रहे हो, तो वो अपने आप करके देगा आपको 14। वो अपने आप करता रहेगा पेपर, ठीक है, 14। द नेक्स्ट स्टेप सेज यू हैव टू ऐड 5 टू इट। तो सिंपल आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड 5, यानी कि 14 में आप 5 नंबर को ऐड करोगे एंड देन इट विल बिकम 19। तो ये आंसर भी उसने खुद ही निकाल लिया अपना। ठीक है, so the next step says you have to multiply it by 5. So I will multiply by 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 95। कैसे आएगा मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। 5 9 जा 45, 5 एंड 4 विल बी कैरी ओवर, 5 1 जा 5 प्लस 4 9। सो 9 मेरा आंसर आ गया। अब इसके रेस्ट ऑफ द 2 जो स्टेप्स है वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। अब आपके ये स्टेप्स है, पुट अ जीरो बिहाइंड द आंसर एंड ऐड द डेट ऑफ बर्थ। तो लास्ट नंबर देखिए, पुट अ जीरो बिहाइंड द आंसर, तो जो आपने शीट उसको दे रखी थी ना, उसका लास्ट आंसर क्या आया था, 95। राइट, 95 ये था ना, 95 उसका आंसर था। अब आपको क्या करना है, उसको कहना है कि जस्ट पुट अ जीरो बिहाइंड द आंसर, तो वो यहाँ पर 950 कर देगा। ठीक है, 950 कर देगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में उसको बोलना है जस्ट ऐड द डेट ऑफ बर्थ। सी, मैंने अपना जो डेट ऑफ टेक द मंथ नंबर, मैंने मंथ नंबर से स्टार्ट किया था ना, लास्ट स्टेप मैंने को खत्म करना है डेट ऑफ बर्थ पे, यानी कि जिस दिन मैं अपना बर्थडे बनाती हूँ वो है 3। तो ये आपको रिवील करके चल रही हूँ, अदरवाइज तो वो अपने आप करके देगा आपको। तो वो आप उसको सिंपल ये बोलोगे एट द डेट ऑफ बर्थ, तो देखो वो क्या करेगा, सिंपल 950 के अंदर, क्योंकि वो 3 तारीख उसकी डेट ऑफ बर्थ है जिस दिन बर्थडे बनाता है, तो 953 में 9550 में 953 को ऐड करके 953 उसका आंसर आ जाएगा बेसिकली। अब आप उसको कहोगे यार जस्ट गिव मी द आंसर, आई टेल यू द डेट ऑफ बर्थ, बेसिकली योर डेट ऑफ बर्थ। तो अब आपको कैसे प्रिडिक्ट करना है, अब आप देखो 9553 से आप ये नंबर कैसे निकालोगे, 3 जुलाई, जो मैं ऑलरेडी रिवील कर चुकी हूँ आपको। तो सी, आपको कुछ नहीं करना, इसका मैजिक बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंपल आपको कोई भी नंबर, यानी कि 4 नंबर की डिजिट आ जाए या 3 नंबर की डिजिट आ जाए, आपको सिर्फ 250 को माइनस करके चलना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, देखिए 953 में इफ आई सब्ट्रैक्ट 250, सो सी मेरे पास आंसर क्या आया है, 703। तो इसको हाफ कर दो आप, तो इधर के जो 2 पार्ट होंगे ना, वो हमेशा आपका क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और जो इधर का पार्ट होगा ना आपका, वो आपको पता लग जाएगा, वो आपका बेसिकली क्या होगा, मंथ ऑफ द नंबर, मंथ ऑफ द नंबर। तो देखिए मेरा तो 7 ही था, जुलाई। आप उसको अगर मान लो उसका 8 आता है तो आप उसको सीधा बोल देना जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, अगस्त उसका 8। तो आपको खुद को माइंड में रखना है कि 6 है तो जून, 8 है तो अगस्त,
12 है तो दिसंबर, 11 है तो नवंबर, तो उसके अकॉर्डिंग डेट आपके पास यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना? डेट आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आप उसको बोलोगे 3 जुलाई आपका बर्थडे था, और वो हैरान मान के कुर्सी से उछल जाएगा, आपको कैसे पता लगा ये? मैंने तो बताया ही नहीं आपको, क्योंकि मेरे साथ तो ये हो चुका है मेनी टाइम्स। इवन मैं एक लाइव प्रोग्राम भी करने वाली हूँ जिसमें मैं इस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ प्ले करूँ और आप वो सब देख सको। बट अभी क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं अभी नहीं कर पाई। बट मैं ये गेम जरूर करूंगी, आप अपने आप करिए, और प्लीज किसी के साथ अगर आप ये ट्रिक करते हैं ना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने किस किस के साथ में ये प्रैंक किया, ट्रिक किया, और कितना मजा आया आपको, ठीक है? अब आप प्लीज सेकंड जो मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बहुत एक्साइटेड हूँ, वो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं, इवन बड़े भी कहते हैं कि ये कर कैसे दिया, और इसमें बहुत सारे मैजिक्स हैं। ये मैजिक यहीं पर खत्म नहीं है, तो हम सेकंड मैजिक को करते हैं फटाफट से, और उसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सेकंड मैजिक में आपको मैं बताने वाली हूँ हाउ टू प्रिडिक्ट अ पर्सन्स पॉकेट मनी। ये बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पॉकेट मनी में आपके कितने पैसे हैं ये कैसे बता सकते हैं आप? तो कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं लेना है। सी, आप नंबर एक ऐसे लीजिएगा, या तो जो वो राउंड फिगर हो, या कुछ कुछ ऐसे हो, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेके मत चलिएगा पॉकेट मनी के। ये आप चीज का ध्यान रखिएगा, किसी के साथ प्ले करे तो आप उसको कहो यार रैंडमली कुछ पैसे रख ले अपनी जेब में, या तू वैसे कुछ माइंड में जितने तुम्हारे पॉकेट में हो उतने लेकर आप चलो। तो एक लमसम लमसम मनी होती है ना, उस टाइप से उसको आप प्ले कर सकते हो। तो अब आप देखो कितना मजा आने वाला है आपको। अब देखिए आप नेक्स्ट विंडो पे। Friends, now this is the second technique. This is the second magic. You can play with anybody, and now I can tell you how much money in your pocket. नहीं झूठ बोल रहा है। So I know आपने पॉकेट मनी में से पैसे निकाल लिए अपने पॉकेट में से, but just kidding. See, how to predict basically a person's pocket money. So basically, this technique will help you to find out how much money a person has in his or her pocket or wallet, etc. So it can be, you can basically try it on a group of people simultaneously. But before playing this technique, you have to follow these some steps. Means जिस पर्सन के साथ आप इसको प्ले करोगे, आपको ये स्टेप्स उसको फॉलो कराने हैं। जब आप ये स्टेप्स उनको फॉलो कराएंगे, तो आप बता सकते हैं कि उनकी पॉकेट में कितने मनी है, ठीक है? तो बेसिकली वो अपने माइंड में भी कर सकते हैं, या पेपर पेन भी ले सकते हैं अगर उनकी पॉकेट में ज्यादा पैसे हैं तो। बट अभी मैं चाहूँ तो 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200, 150, वट एवर नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? बट अभी मैं प्ले करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा नंबर आपको लेकर के देती हूँ। मैं ले लेती हूँ कि मेरी पॉकेट मनी में 20 रुपीज है, क्योंकि समटाइम्स ये स्टूडेंट्स बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो ज्यादातर छोटे ही अमाउंट होता है उनकी पॉकेट मनी में, और ज्यादा कैलकुलेट वो नहीं कर पाते हैं। तो आप भी अपने किसी भी फ्रेंड या किसी भी बच्चों के साथ आप एक लाइन लाइट बन सकते हैं, कहीं पर भी गैदरिंग में, बर्थडे पार्टी में, या किसी भी तरीके से आप बच्चों के साथ प्ले करके लाइमलाइट बन सकते हैं कि आपको इतने अच्छे अच्छे मैजिक्स आते हैं। तो सी, मैं एक 20 रुपीज एज अ रैंडमली कोई नंबर ले लेती हूँ, मेरी पॉकेट में है, जो मैं आपको रिवील कर चुकी हूँ। बट नाउ द सेकेंड स्टेप से, जब आप प्ले करोगे तो आपको उसको बोलना है कि जो आपने नंबर लिया है उसमें आपको ऐड करना है 5 नंबर। सो आई विल add it 20 plus 5, then will be become 25. Okay, and the next step says you have to say just multiply it by 5. So you will do 25 into 5. So 25 into 5, it will become 125. Okay, so 125 आपका आंसर बन जाएगा। And the next step says you have to say that double the answer. So double the answer, you can do 125 plus 125, or either you can write 125 into 2. So the answer will be 250. Okay, 250. And the next and last step says add your favorite single digit number. What do you understand by this meaning? Add your favorite single digit number means you have to add a single digit number which is 0 to 9. ओके, सिंगल डिजिट है 0 to 9। कोई भी, या तो आप उसको कह सकते हैं अपना लकी नंबर या फेवरेट नंबर या वट एवर,
कोई भी एक नंबर ऐड कर लो। तो मैं जैसे मेरा 7 लकी नंबर है तो मैं अपना एक 7 नंबर इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो आई विल ऐड 250 प्लस 7, तो आंसर विल बिकम 257। 257 मेरा आंसर बन गया। अब कोई भी आंसर बने, कुछ भी आंसर, किसी का कुछ भी बने, मैंने 20 लिया, हो सकता है आपका कुछ और बन रहा हो। अब इसका सीक्रेट बताती हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। इन जस्ट अ सेकेंड्स में आप आंसर निकाल के दोगे, और वो सच बता रही हूँ, बच्चे अगर तो कुर्सी से उछल जाते हैं कि आपने ये किया कैसे, हाउ कैन यू डू दिस। सी, अब आपको नेक्स्ट विंडो पे लेके चलती हूँ और इसका सीक्रेट बताती हूँ। सो 257, दिस इज द आंसर। सी, अब इसका सीक्रेट बताती हूँ। जानना चाहेंगे ना आप 257 का आंसर कैसे निकालना है? अब आपका देखो, कोई भी आंसर हो, उसका आंसर का सब तरीके से यही ट्रिक आप फॉलो करोगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस किस के साथ आपने प्ले किया और वाकई में आपको मजा आया क्या, क्योंकि आप लाइमलाइट बन सकते हैं सभी बच्चों के साथ भी। और बच्चे, आपको पता ही है, भगवान का रूप होते हैं, और बच्चों को खुश करना एक अपने आप में आर्ट है। और अगर बच्चे खुश तो सब कुछ बढ़िया होता है, फैमिली में भी बहुत अच्छा होता है। तो ये ट्रिक्स बहुत ही अच्छी है, और वैदिक मैथ्स आपको पता लगेगा कितना यूजफुल और मैजिकल है, कि मतलब आपको खुद रियलाइज होगा कि इट्स रियली प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन आवर टुडेज एवरीवेयर। मीन्स हर जगह आप किसी दुकानदार के आगे भी खड़े होते हो ना, तो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बहुत अच्छी टेक्निक है मेरे पास, जो अभी तक आपने यूट्यूब पे तो कहीं देखी ही नहीं होगी, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। वो टेक्निक मैं वीडियो लेकर के आऊंगी जल्दी ही उसके लिए। बट बिफोर दैट, इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल, तो जस्ट सब्सक्राइब इट, ओके। तो जस्ट लेट्स स्टार्ट। सी, 257 आंसर था। अब इसका आंसर आपको कैसे फाइंड आउट करना है? जो ये यूनिट प्लेस है ना, इसको आप भूल जाओ। यानी कि हमेशा आपको जो यूनिट प्लेस होगी ना, जिसको हम वंस की प्लेस बोलते हैं, जस्ट इग्नोर इट। तो फाइनल आंसर 257, लेट अस सी। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, you have to ignore the digit in the unit place. So 7, I will ignore it. The answer is 25, first of all. So 25 आंसर कुछ भी आपके पास हो, आपको सिंपल क्या करना है, -5 करना है। ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। सी, 20 इज द आंसर, और यही आपने पॉकेट मनी में आप लेकर चले थे। ठीक है, ये ही आप पॉकेट मनी में लेकर चले थे। ठीक है, अगर आप चाहो ना तो एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बैठे बैठाए भी करा सकती हूँ। जैसे अगर मैं आपके सामने नंबर कुछ भी ना लूं, कुछ भी ना लूं, जीरो ही ले लूं, तो भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो भी बता सकती हूँ। अगर आप 11 रुपए लेते हो ना, तब भी आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तब भी आपको, आप इसी टेक्निक से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने आप करके आप देखिएगा और मुझे बताइएगा। तो 7 आपको इग्नोर करना है यूनिट प्लेस, और हमेशा जो आंसर आएगा उसमें से 5 माइनस करना है। एंड दिस इज द ट्रिक ऑफ द सीक्रेट ऑफ दिस टेक्निक। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊं कि जो 2020 50 नए नए बहुत मुश्किल वर्ड्स होते हैं या पैराग्राफ्स होते हैं, उनको हम कैसे लर्न करते हैं, मेमोरी कैसे शार्प कर सकते हैं, तो मेमोरी शार्प के ऊपर भी मैं एक बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। मैं हर तरीके से आपके आईक्यू लेवल के ऊपर भी एक वीडियोस लेकर के आऊंगी। बट बिफोर दैट, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव और वैदिक मैथ सीख रहे हैं, तो अभी हम उसको जरूर फिनिश करेंगे, और साथ में बहुत सारी चीजें इसी एक चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी चीजें एक ही चैनल पर सब कुछ सीखने को मिले, और एक क्वालिटी आपको मेंटेन करनी हो, और क्वालिटी अगर आपको लगती है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।